یہ میں بھی مانتا ہوں حضرت ابوبکر خلیفہ کہیں ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا، لیکن اگر کوئی کہے کہ مولا علی کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا، ہم غلام کس لیے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہ خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے، ایکسیڈنٹلی معاملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ چل گیا، حضرت عمر بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ چل رہا ہے، معاملہ ختم ہوا۔ جب ہم مولا علی کی بات کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب دوسروں کی بات آتی ہے جو کہ بڑے محترم ہے ہمارے لیے، لیکن ان کے لیے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اتری۔ علی نے خود خلیفہ بنایا، فاروق نے خلیفہ بنایا، فاروق کو بھی علی نے بنایا، عثمان کو بھی علی نے بنایا، اور حقیقت میں علی نہیں بنانے والا، میرے اللہ نے بنایا، میرے پیغمبر نے بنایا۔ پھر اللہ کے رسول نے خود کہا مجھے امید ہے نہ اللہ ان کی خلافت کا منکر ہے نہ مومن منکر ہے، آپ منکر بن جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بات ختم۔ دیکھیں کتنی باتیں آخری ٹرن میں کتنی باتیں میں نے کی، ایک تو سنیں، حدیث نمبر ہے بخاری شریف 6830 نمبر حدیث ہے، 6830 نمبر۔ اب یہ اگر حوالہ ٹھیک نہ ہو تو میں مجرم، صاحب کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے مباحثے کا اختتام ہو گیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم مباحلے کی طرف آئیں گے، کیونکہ 6830 نمبر روایت ہے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے حق واضح کرنا ہے کہ یہ دو مولوی بیٹھے اور رولا پایا، انہوں نے اتنا بڑا شور مچایا، ان میں سچا کون ہے، اس کی طرف بھی ہم آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں بخاری کی روایت 6830، اگر آپ خود پڑھیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، لیکن چلیں میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق حج کے لیے گئے، اور کسی نے کہا کہ حضرت عمر کو کہ عمر آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ پروگرام بنا رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر فوت ہو گیا ہم اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ بنا لیں گے، جس طرح اپنی مرضی سے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا۔ ہاں بخاری شریف 6830۔ اس حدیث کے بعد انشاءاللہ حق ہو جائے گا اور باطل ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ سنیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ عمر آنکھیں بند کرتا جائے ہم اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا سنیں جس طرح حضرت ابو بکر کو صحابہ نے خلیفہ بنا لیا ہم بھی کسی کو اپنی مرضی سے خلیفہ بنا لیں گے۔ حضرت عمر کو یہ بات پہنچی، آپ نے کہا اللہ معاف فرمائے، اتنا بڑا کام اتنا بڑا جرم کرنے جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا حج کے دنوں میں یہاں خطبہ دیتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ یہاں پہ خطبہ نہ دیں، ارد گرد کے لوگ بدو بھی جمع ہے، کوئی اس کا کوئی مطلب لے گا کوئی مطلب لے گا، آپ ایسے کریں مدینہ میں جائیں، وہاں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور وہاں جا کے آپ اس بات کا اعلان کرنا، خطبہ دینا۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، عقل مند سے حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلیں پھر مدینہ میں جا کے۔ جب مدینہ میں آئے حضرت عمر بڑے غصے کے ساتھ پہلا جمعے کا خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ابو بکر کی خلافت بن گئی تھی ہم اس طرح بنا لیں گے۔ انہوں نے کہا سن لو واللہ کی لو قد مات عمر بعت فلانا، اگر عمر فوت ہو گیا تو ہم فلاں کی بیعت کر لیں گے۔ فلا یتغرن امرؤ ان یقول انما کانت حدیث نمبر یار آپ اسلام 360 سے آپ ڈھونڈ لیں، اگر ادھر نہیں مل رہی چھاپے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر حدیث نمبر 6830 نمبر حدیث ہے، انہوں نے فرمایا سنیں آپ توجہ میری طرف رکھیں، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ فرمایا انما کانت بیعت ابی بکر، جس طرح ابو بکر کی بیعت ہوئی ہم بھی ایسے کر لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا ہو گئی وتمت، مکمل بھی ہو گئی، چلو چلنے بھی لگ گئی، لیکن سن لے الا انھا قد کانت کذالک ولکن اللہ وقع شرھا، یہ حدیث کے الفاظ انشاءاللہ میں ویڈیو ایڈیٹنگ میں لگا دوں گا۔ اللہ حضرت عمر فرماتے ہیں ہو گئی، اچانک ہو گئی، چلتی بھی رہی، لیکن اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے اس اتنے بڑے جرم کے شر سے ہمیں بچا لیا کہ اگر ابو بکر کی خلافت پر امام علی تلوار اٹھا لیتے، تلوار یار بخاری پڑھ رہا ہوں، مجھے بخاری کہتے ہیں، اب دیکھیں اب اعتماد نہیں ہے، سنیں انشاءاللہ ادھر سے بھی نکلے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ سنیں ہاں حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں، عمر کہہ رہے ہیں ادھر سے نکالیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ سنیں فرماتے ہیں میں پہلے پڑھوں گا نا، موبائل سے اسٹارٹ کر رہا ہوں میں، چلیں کرتا ہوں ابھی بالکل اطمینان کے ساتھ بات، اطمینان کے ساتھ سارے اہل بیت کو دبائے بیٹھے ہیں وہاں پہ شر ہے۔ ابو بکر صدیق کا جو واقعہ وہ شرب کا معاملہ بن گیا، کہہ رہا ہوں میں بخاری پڑھ رہا ہوں، اب یہاں بخاری کھولنا
किताब है अब सामने। देखे जब बुखारी पढ़ रहा हूँ तो तड़पने लग गए हैं। हजरत उमर कह रहे हैं, किताब खोले बुखारी की। हजरत उमर कह रहे हैं माड़ा चंगा नहीं माड़ा, अबू जी माड़ा चंगा नहीं सुने, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। हजरत उमर फरमा रहे हैं अल्लाह ने उस हमारी गलती के शर से हमें महफूज फरमाया कि हमने जल्दी से खलीफा बना लिया। अगर हजरत उमर हजरत अली तलवार उठा लेते इस बात पर तो कितने कत्ल होने थे। उस शर से अल्लाह ने हमें महफूज फरमाया। लेकिन सुन लो, वलैसा मिनकुम मन तुक्ता आना को, कौन है जो तुम में से गर्दनें कटवाने का प्रोग्राम बनाए रखा है। वो हो गया एक्सीडेंटली मामला, अब यहाँ पे नहीं चलेगा। ये हजरत उमर फरमा रहे हैं। अब देखिए ये बुखारी है, अब यहाँ पे आएंगे तो मसला बन जाएगा। अगली बात ये बुखारी की मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, वो भी हदीस बुखारी से है। यहाँ पे इंशाल्लाह बात खत्म करूँगा। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी अल्लाह के फजल करम से कि ये खिलाफत मनसूस मिन अल्लाह नहीं है। एक्सीडेंटली मामला हुआ है, ठीक है, वो चल गया। हजरत उमर भी कह रहे हैं ठीक है वो चल रहा है, मामला ख़त्म हुआ। जब हम मौला अली की बात करते हैं, नबी के घर वालों की बात करते हैं तो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। जब दूसरों की बात आती है जो कि बड़े मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन उनके लिए कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से उतरी। अच्छा मुझे एक हदीस ये बताएं कि जब हजरत अबू बकर खलीफा बने और उन्होंने खुद अपनी ज़बान से कहा कि तुम मेरी बैत नहीं कर रहे, हजरत उमर हजरत अली ने छः माह बैत नहीं की, बताएं ना हजरत अबू बकर अपने मुँह से कहा हो अली तू मेरी बैत नहीं कर रहा, मेरी बैत के लिए तो आसमान से आयतें उतरी हैं, मेरी बात को लिए तो नबी इस्लाम ने खुद फरमाया। ये दलील बनती थी ना उनकी, क्यों नहीं उन्होंने कहा आंखों से आंसू बहा के उन्होंने कहा कि उमर अली प्यारे, ये हदीस बुखारी में है कि अली प्यारे कि असल मसला ये था कि इंसार और मुहाजिरीन इकट्ठे हो गए और मामला गड़बड़ हो गया और हमने जल्दी से कर लिया। उन्हें सबसे पहले उन्हें कहना चाहिए था ना कि ये हदीस मेरे बारे में उतरी है, ये कुरान की आयत मेरे बारे में उतरी है। अली तो छः माह हो गया, कुरान की भी मुखालफत कर रहा है, हदीस की भी मुखालफत कर रहा है। बल्कि हजरत अली रजी अल्लाह फरमाते हैं आपने ज्यादती की और आपने हमारे ऊपर ज्यादती की है, और इन्ना लिकराबतिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीबन, हम अल्लाह के रसूल की किराबत की वजह से इसे अपना हक समझते हैं और तुमने हमारे साथ ज्यादती की है। इसके बाद आगे चलते हैं, मैं आपको इससे भी वाज़ेह हदीस आपको बताता हूँ। इन सारी हदीस के पास आपके पास जवाब नहीं है अल्लाह के फजल करम से। हाँ ये मैं भी मानता हूँ हज़रत अबू बकर खलीफा ठीक है, जो हो गया, लेकिन अगर कोई कहे कि मौला अली के लिए साबित नहीं हो सकता, हम गुलाम किस लिए इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। सुने अगली बात जो मैं आपके सामने करने चाह रहा हूँ, इसके बाद आपकी बात आखिरी होगी और मौला का तर्जमा आपने दोस्त मुझे बताना है और इंशाल्लाह बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो आए मुबाहले की तरफ, वगरना फिर इंशाल्लाह लोगों के सामने हक वादे हो गया है कि अफजल वही होता है जो मिंबर पे कहे सलूनी कबला अन तख्फिदूनी, मुझसे सवाल करो इससे पहले कि तुम्हें अली ना मिले। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम के सहाबा में से, अहले बैत में से, सहाबा में से सिर्फ हजरत अली हैं जो फरमाते हैं मुझसे सवाल करो, क़यामत तक आने वाले हवाल के बारे में सवाल करो, कुरान की हर आयत के बारे में मुझे सवाल करो, कुरान कहाँ उतरा है, किसके बारे में उतरा है, किस पहाड़ पे उतरा है, किस वादी में उतरा है। इतना अफजल बंदा, शुजा भी उससे बड़ा नहीं, इल्म वाला भी उससे बड़ा नहीं, बहादुर भी उससे बड़ा नहीं, सखी भी उससे बड़ा नहीं, इल्म भी उससे बड़ा नहीं, जनाब चादर किसा में रहमत में वो आया, अहले बैत में वो आया, तमाम फदाइल उसके, और खलीफा की उसको होना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ये बात 100% गलत है। ये बात मैं आपको जो कर रहा हूँ इसकी बात, इसका मुझे जवाब दें कि किस तरह हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह ने इस गलती के शर से हमें महफूज फरमाया कि अल्लाह की रहमत से फिर मामला सही चलने लग गया। अगर मौला अली तलवार उठाते तो कितने थे जो मौला अली की तलवार से तहे तेग हो जाते। मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह देखने वाले देख रहे हैं। ये जो आपने गलती का शर वाला मामला है ना, आप ये हदीस किताब से निकाल कर दें इंशाल्लाह। तो दूसरी बात ये है इंशाल्लाह कि आप मुझे ये बताएं, एक दरख्त का पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं गिरता। अब यहाँ पे मर्जी पे आ जाती है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिरता, अल्लाह की मर्जी के बगैर। इतना बड़ा निज़ाम, दूसरों की बारी फिर अल्लाह की मर्जी, इतनी बड़ी हुकूमत, अल्लाह की मर्जी तो कुछ भी इतना बड़ा मामला, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जरी दिलेर बंदे भी घबरा गए। कहते हैं अगर सिद्दीक़ अकबर ना होता तो उम्मत को कोई संभाल न सकता। ये साबित करें कहाँ पे कि सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाले, हदीस निकालें। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार निकाल ली। खबरदार जिसने कहा कि अल्लाह का रसूल फौत हो गया मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, उन्होंने कुरान पढ़ा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता, ये पूरी आयत पढ़ी तो उसके बाद सिद्दीक़ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के हाथों से तलवार गिर पड़ी और कहा अल्लाह के रसूल, सिद्दीक़ अकबर ने कहा जो अल्लाह के रसूल को रब मानता था उसका रब फौत हो गया है और जो उस रब को मानता था उसका रब जिंदा है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मुश्किल घड़ी में उम्मत की डोर संभाली और
बड़े बड़े मुसलमा कज़ाब जैसे बड़े बड़े काफरों के साथ लड़ाई की और बड़े बड़े मुर्तदीन जेड़े ज़कात के मुनकर उनके खिलाफ जिहाद किया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि ऐ सिद्दीक़ अकबर, आप क्यों उनके खिलाफ क्यों तलवार उठा रहे हैं जो कलमा गो हैं? तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि आप तो बड़े सख्त दिल थे, दीन के मामले में तुझे क्या हो गया है कि जब अगर एक रस्सी भी ज़कात की जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर में कोई दिया करता था, अगर आज कोई नहीं देगा तो मैं उसके खिलाफ भी जिहाद करूँगा। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने कोई नया निज़ाम नहीं चलाया, बल्कि उसी लश्कर उसामा की रवानगी करवाई जिसकी पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की थी और 2.5 साल हुकूमत की। और हज़रत अली अल मुर्तज़ा सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज़ें पढ़ते रहे। जो पीछे नमाज़ें पढ़ता है वो खिलाफत को तस्लीम करता है, या फिर नमाज़ें पीछे पढ़ना छोड़ दिया हो, ये साबित कर दें कि सिद्दीक़ अकबर 2.5 साल खिलाफत की। हाँ, दूसरी बात जो मेन हज़रत अली अल मुर्तज़ा की जो फजीलत भी है, जो अल्लाह के रसूल ने मकाम दिया, वो ये है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अली है मेरी उम्मत का काजी है, मेरी उम्मत का जज है, मेरी उम्मत का क्या है? जज है। अच्छा, जज जो होता है ना वो खलीफा भी पावरफुल होता है, तो इसमें हज़रत अली की शान कम नहीं होती। वो तो सिद्दीक़ के दौर में भी जज था, फारूक के दौर में भी जज था, उस्मान के दौर में भी जज था। अगर वो हजरत अली जज थे तो हजरत अबू बकर को उतार देते, फैसला दे देते अगर खिलाफत के लायक नहीं थे। फारूक को भी उतार देते, उस्मान को भी खिलाफत उतार देते। जज तो खुद थे, जज तो किसी का पाबंद नहीं होता, अदालत तो आज़ाद होती है, अदलिया आज़ाद है। लिहाजा या फिर माने कि उन्होंने खिलाफत को माना, या फिर माने कि वो काजी सही नहीं थे, नऊजुबिल्लाह, जज सही नहीं थे। अगर जज सही थे और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत का चीफ जस्टिस है, और चीफ जस्टिस को सिद्दीक़ ने भी माना, फारूक ने भी माना, उस्मान ने भी माना, और जब खुद खलीफा बने फिर कादी शुरा को जज बनाया, फिर खुद जज से हटकर खुद अदालत में आगे सामने आए। जब यहूदी के ज़िर्रे का मामला बना तो हजरत अली सामने कादी शुरा की अदालत में सामने खलीफा भी खड़ा है, साथ यहूदी भी खड़ा है, ये मामला है। हजरत अली से पूछा आप इस ज़िर्रों की गवाही दें। हजरत अली ने फरमाया मेरा गवाह मेरा बेटा है। तो कादी शुरा ने कहा बाप के हक में बेटे की गवाही नहीं चलती, जब बेटे की गवाही नहीं चलती, यहूदी का वो तो कसम उठा दे कि यहूदी था। तो हजरत अली ने कहा अब मैंने बस इसको छोड़ दिया, अब मेरा गवाह यही है। तो यानी जज जो होता है वो खलीफे के ऊपर पावरफुल होता है। मैं कहता हूँ वो तो पहले ही पावरफुल थे, जब पावरफुल थे तो फिर सिद्दीक़ की खिलाफत पे आना कदम रखना जुर्रत कैसे हुई? अगर जुर्रत हुई है तो माने अली ने खुद खलीफा बनाया, फारूक ने खलीफा बनाया, फारूक को भी अली ने बनाया, उस्मान को भी अली ने बनाया, और हकीकत में अली नहीं बनाने वाला मेरे अल्लाह ने बनाया, मेरे पैगंबर ने बनाया। हदीस मैंने पढ़ी है, वमा यंतिकु अनिल हवा का तर्जुमा क्या है? वमा यंतिकु अनिल हवा का तर्जुमा बताएं मुझे। ये बताएं कि वमा यंतिकु हवा का तर्जुमा बताएं मुझे। ये बताएं कि ये नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा का तर्जुमा मुझे पता है कि अल्लाह के क्या अपनी मर्जी के बगैर नहीं बोलते। जब बोलते नहीं, उन्होंने कह दिया है कि ऐशा अपने भाई को बुला, अपने बाप को बुला, मैं खिलाफत लिख दूं ताकि कोई बाद में इख्तलाफ न करे। फिर अल्लाह के रसूल ने खुद कहा मुझे उम्मीद है ना अल्लाह उनकी खिलाफत का मुनकर है ना मोमिन मुनकर है, आप मुनकर बन जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं। बात खत्म। देखें कितनी बातें आखिरी टर्न में कितनी बातें मैंने की। एक मिनट कितनी बातें मैंने की हैं। बस खत्म हो। अब फिर आए अगले टर्म की तरफ आए। अगर आप मजबूत हैं कि अगली बात खत्म हो। देखो जी गाल जितना लंबी करेसू है ना, जितना लंबी करेसू गाल लंबी कोई फायदा कोई नहीं गल लंबी करन दा। कोई बगाना दे मेरे भाई ने होए तुसी जा बेटा बोतल लेके आ। इन चीजों की जवाब नहीं बोतल लेके जल्दी। हजरत उमर ने ये क्यों कहा? हजरत उमर ने इस बात को छोड़ें। ले आ बेटा कोका कोला नहीं, केड़ी बोतल की